اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے وسیلہ۔ آج ہم وسیلے پہ بات کریں گے۔ تو یہ مسئلہ بڑا شدت اختیار کیا ہوا ہے لوگوں کے بیچ میں، وسیلہ بنانا چاہیے کہ نہیں، وسیلہ جائز ہے یا نہیں۔ تو مختلف لوگ اس پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو میں اس پہ ایک تھوڑی سی مختصر سی بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو جتنی رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو وسیلہ جو ہے آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس پہ پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، تو یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تو جس طرح بھی موضوع پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے نا، اس پہ میں ویڈیو بار بار بناتا رہوں گا انشاءاللہ، مختلف طریقوں سے مختلف حوالے دے دے کے باتوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو جو وسیلہ ہے، یہ جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، یہ وسیلوں سے ہی بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام بھی وسیلوں سے ہی چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسبب الاسباب یعنی کہ اسباب کا بنانے والا، اسباب کا پیدا کرنے والا، جتنے بھی اسباب ہیں وہ تمام کا تمام مالک اللہ ہے۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ کا جو حقیقی غیر ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی اکیلا مالک ہے اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ مطلب جتنے بھی یہ کائنات میں نے بتایا کہ وسیلوں سے اللہ نے بنائی ہے نا، تو وسیلے بھی اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ تو اگر آپ غور کریں گے نا، تو یہ چل ہی وسیلوں سے رہا ہے نظام۔ تو مطلب بہت ساری آپ مثالوں سے آپ خود بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مطلب بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے نر و مادہ کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، وسیلہ بن گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کرنا ہے، اس طرح سے پیدا کرنا ہے۔ کئی ایسے مطلب جاندان ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں، بہت سارے بچے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ وسیلوں سے ہی تو ان کو پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان کا جو نظام ہے، ان کا جو خوراک کا نظام ہے، کھانے پینے کا، ان کی جو ضروریات ہے، وہ وسیلوں سے ہی پیدا کرتا ہے نا۔ تو مطلب زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ مطلب سورج کی روشنی ہے، بارشیں ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی روشنی ہے، مطلب اس طرح کی یہ ساری چیزیں، مطلب نظام جو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ وسیلوں سے ہی چل رہا ہے۔ تو اب وسیلے کئی قسموں کے ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، وسیلوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بات مطلق ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور انسانوں کے بیچ میں خود ایک وسیلہ بناتا ہے، اللہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اپنا آپ بتانے کے لیے، اپنا مطلب علم و حکمت بتانے کے لیے، اپنا مالک ہونا بتانے کے لیے، اور اپنا معبود ہونا بتانے کے لیے، اور تمام ملکوں کا مالک ہونا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک وسیلہ بناتا ہے، مطلب رسول بناتا ہے۔ تو لوگوں کے بیچ میں اس کو لوگوں میں سے ہی کھڑا کرتا ہے۔ تو باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان ہوتے ہیں، ان انسانوں اور اللہ کے بیچ میں جو وسیلے کا کردار ادا کرتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وسیلے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ وسیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وسیلہ جائز ہے، وسیلہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ کائنات چل ہی وسیلوں سے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے بڑا وسیلہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو گے تو میری ہو جائے گی، اس کی مانو۔ اب میرے یعنی کہ رسول کی مانو گے تو آپ میری مان رہے ہو، اس کی اتباع کر رہے ہو تو میری مان رہے ہو، اس کے آگے جھک رہے ہو تو میرے آگے جھک رہے ہو۔ تو یہ سب سے بڑا جو وسیلہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، جس کی مطلب آسانی کے ساتھ سب کو سمجھ آ جائے گی نا۔ اچھا، اب کیا چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو بھول جائے، اللہ کو نظر انداز کر دے، تو صرف مطلب رسول کو ہی سب کچھ مانے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ رسول اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے،
रसूल ये नहीं कहता मेरी इबादत करो, कहता अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे झुको, जो काम करना अल्लाह के लिए करो, अल्लाह की मानो। यानी कि अल्लाह का गुलाम बनने की अल्लाह के नबी दावत देते हैं, ना कि अपनी। ये अल्लाह ताला ने कुरान में बताया भी है कि कोई नबी को रसूल ऐसा नहीं है जो लोगों को ये कहा कि मेरे पीछे लगो, लेकिन वो ये कहता है कि अल्लाह की तरफ जाओ। ठीक है ना? तो अगर कोई शख्स अल्लाह को भूल के नजरअंदाज करके तो मतलब रसूल की कोई सब कुछ मान ले, अल्लाह को माने ही ना, तो ये जायज नहीं है। यानी कि इस तरह किसी को वसीला बनाना जायज नहीं है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिरे से वसीले का इनकार कर दें। यानी कि ये इस बंदे का अकीदा, अकायद और नजरियात, इसका तरीकाकार ठीक नहीं है। ये बातिल भी हो सकता है, ये मुशरकाना भी हो सकता है, ये काफराना भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है? ये इसका तरीका ठीक नहीं है। ना कोई नबी रसूल ये कहता है कि मतलब मेरे बन जाओ, वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं ना, आपकी तरफ नहीं बुलाते, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो वो रसूल नबी सबसे बड़े अल्लाह के और मखलूक के बीच में अल्लाह ताला का अपना ही एक बनाया हुआ वसीला होता है, फिर अल्लाह ताला उसकी खबर भी देते हैं। तो इसी तरह अल्लाह के जो वली होते हैं वो भी अल्लाह और बाकी लोगों के बीच में वसीले का किरदार अदा करते हैं। ठीक है? वो भी यही लोगों को कहते हैं कि एक अल्लाह की पहचान करवाते हैं, उसकी इबादत कैसे करनी है वो बताते हैं, उसके आगे झुकना कैसे है वो बताते हैं। यानी कि जो इंसान के अंदर बशरी कमजोरियां होती हैं, गलतियां कोताहियां होती हैं, वो उसको एक तरफ करते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं, उसको पाक साफ करते हैं, ताकि वो अल्लाह का खालिस बंदा बन सके। तो ये अल्लाह के जो वली होते हैं ये भी अल्लाह के बनाए हुए वसीला होते हैं। ठीक है? तो इनको ढूंढो, इनके पास जाओ और इनसे अल्लाह का रास्ते पे चलने वाला इल्म सीखो, अल्लाह के आगे झुकने वाला इल्म सीखो। ठीक है? अल्लाह का कुर्ब पाने वाला इल्म इनसे सीखो, ये सीखा, ये भी वसीला है। अगर कोई शख्स वही बात कि अल्लाह को भी छोड़ दे, भूल जाए, नजरअंदाज कर दे और उन बुजुर्गों को ही सब कुछ समझ ले, तो ये इसका अकीदा गलत है, ये इसके अकायद नजरियात गलत है। इसका तरीका वही बात काफराना भी हो सकता है, मुशरकाना भी हो सकता है, और मतलब कह लें कि ये शिरक भी है, इसमें आ जाता है कि अगर कोई अपना जाती इस तरह का अकीदा रखता है। तो हालांकि वो बुजुर्ग ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब मेरी इत्तबा करो, मेरे आगे झुको, मैं ही रब हूं या मैं ही, ऐसा वो नहीं कहते। ठीक है? वो भी अल्लाह की ही तरफ आपको राह दिखाते हैं ना। तो ये भी वसीला होते हैं ना। तो इनको भी ढूंढना चाहिए, इनको भी अल्लाह के जो नबी होते हैं, रसूल होते हैं ना, वो तो ऐलान करते हैं हम अल्लाह के नबी, हम अल्लाह के रसूल हैं, वो तो अल्लाह का उनको हुक्म होता है। ये तो पूरे जहान के लिए, बस सब के लिए होता है ना। जब ऐसी हालात नहीं होते हैं, अल्लाह का नबी या रसूल नहीं होता है, तो फिर जो अल्लाह के वली होता है ना, ये रसूलों के नक्शे कदम पे होते हैं ना। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं इनको ढूंढो, इनको तलाश करो, कोई भी सबब जो है ना, कोई भी तरीका अख्तियार करो, जो भी तरीका, जो भी इबादत, जो भी शख्स आपकी रहनुमाई अल्लाह की तरफ करेगा, या कोई अमल, कोई इबादत, कोई भी काम आपका, जो भी जद्दोजहद आप करके अल्लाह की राह पाते हैं ना, तो वो जद्दोजहद, वो काम या वो शख्स, वो वसीला ही है आपके लिए। अगर कोई बड़े बहादुर आदमी है, बड़ा ही कोई दलेर आदमी है, बड़ा कोई मजबूत असाब का मालिक है, बड़ा कोई इल्म हिकमत वाला है, जो लड़ सकता है शैतान के साथ अकेले, तो इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है? बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत बुलंद मकाम है। ठीक है? अगर कोई अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट ताल्लुक बनाने की करता है तो कोई इस पर पाबंदी नहीं है, बना सकते हैं, बड़ा आला और बेहतरीन मर्तबा है। ठीक है? लेकिन जब आप एक वसीले के थ्रू जाते हैं तो उसमें सिर्फ आपकी रहनुमाई होती है। ठीक है? कोई ये नहीं होता कि जो वसीला होता है उसको क्रेडिट चला जाता है, नहीं, आपकी इच्छाइयां, आपकी नेकियां आपके साथ ही हैं। आपका मर्तबा, आपका कुर्ब जो आप हासिल कर लेते हैं अपनी जदोजहद से, अपनी मेहनत से, कोशिश से, इल्म हिकमत से, वो आपका ही होता है। ठीक है? उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो वसीले से जरा आसानी हो जाती है, मुश्किल रास्ता है, कठिन रास्ता है, जरा आपकी रहनुमाई हो जाती है, आसानी हो जाती है। रास्ता आपने ही करना होता है, उसको तय आपने ही करना होता है। जरा वसीले से रहनुमाई मिल जाती है, आसानी हो जाती है ना। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कोई इस पर पाबंदी नहीं है। अच्छा, इसको एक और मिसाल से भी समझ लें कि जब आप किसी की मदद करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की अगर आप किसी की मदद करते हैं, मसलन कोई शख्स आपसे राह पूछता है तो आप उसको राह बताते हैं ना, तो ये आप वसीला ही बने हैं, उसको राह बताने का आप वसीला बने हैं। ठीक है? अगर किसी शख्स को पैसों की अशद जरूरत है और वो आपसे पैसे मांगता है तो आप उसको पैसे देते हैं।
तो ये उसकी मदद होगी ना, आप उसके लिए वसीला बन गया। मांगा उसने अल्लाह से था, अल्लाह ने आपके थ्रू आपको उसका वसीला बना दिया, उसको पैसे मिल गए, उसके लिए आसानियां पैदा हो गई। अब आप अगर अल्लाह का कुर्ब चाह रहे हैं, अल्लाह के साथ आप ताल्लुक चाह रहे हैं, तो फिर उसकी पैसों से मदद करके या किसी भी तरह की मदद करके, कोई भी फिजिकली उसकी मदद करके, किसी भी मामले में के अंदर आप उसकी मदद करके, तो आप अल्लाह ताला का कुर्ब पा लेते हैं। अब आप उसके लिए वसीला बन गए, वो आपके लिए वसीला बन गया। आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया उसकी मदद करके, ठीक है, और उसने जो है अपनी जरूरत पूरी कर ली, ठीक है, आपसे मदद लेके। तो इन दोनों सूरतों में वसीला अल्लाह का ही बनाया हुआ है, तो काम अल्लाह का ही चल रहा है। यानी कि जो कारखाना आलम है वो वसीलों से ही अल्लाह ताला चला रहा है, और वसीलों से ही चल रहा है, और वसीलों से ही बन रहा है, और वसीलों से ही मिट रहा है। सिर्फ ये होता है कि वसीले को ही सब कुछ नहीं मान लेना होता, ठीक है। वसीले जो होते हैं ये मतलब आपके रास्ते की चीजें होती हैं, आपको एक बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए होती हैं। तो अपना जो नुक्ता निगाह होता है वो एक बड़े लेवल पर रखते हैं, अपनी नजर जो है वो बड़े मकसद पर रखते हैं। मकसद ये जितनी भी मखलूकात है ना, इस तमाम मखलूकात का जो असल जो मंशा है वो रब्बुल आलमीन है। यानी कि हम रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं, हमें उधर को ही लौटना है। अब मरने के बाद तो खुद ब खुद ही अब लौट रहे होते हैं ना, लेकिन जिंदगी के अंदर कोशिश करके, जद्दोजहद करके, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके और फलाह पाना, ये एक बड़ा और अजीम अमल है। तो इसके लिए जो भी आप कोशिश कर सकते हैं, जो भी मेहनत कर सकते हैं अल्लाह की राह पाने के लिए, जिसको भी आप वसीला बना सकते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। कोई भी ऐसा वसीला आपके लिए बन जाए कि आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, ठीक है। जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हुआ है ना अपना कुर्ब अता करने का, अपनी कुर्बत का, वो मखलूक की खिदमत है, वो मखलूक के ऊपर एहसान है। जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूकात बनाई हुई है, इनके साथ मेहरबानी करना, इनके ऊपर एहसान करना, इनके काम आना, इनके दुख दर्द तकलीफों को दूर करना, इनके लिए आसानियां पैदा करना, तो ये बहुत बड़ा एक वसीला है। मखलूकात की खिदमत बहुत बड़ा एक वसीला है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का। तो इस पे मैं एक आपको कुरान मजीद की एक आयत में आपको ना इस पे मैं पढ़ता हूं, तो आपको उसकी ना इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आप गौर भी कर लीजिएगा। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये सूरह अल माइदा है जी, इसकी आयत नंबर 35 है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबिलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसका कुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जद्दोजहद करो ताकि तुम फलाह पाओ, ठीक है। तो अल्लाह की कुर्ब पाने के लिए, उसकी राह में जद्दोजहद करना, कोशिश करना उसका कुर्ब हासिल करने के लिए, ताकि हम फलाह पा सकें। जो भी आपको तरीका मिलता है, जो कोई इबादत है, कोई अमल है, यानी कि इबादत और अमल जो है ना वो वही है जो आप मखलूकात की खिदमत करते हैं ना, ये तरीके हैं। तो या फिर जब रसूल आते हैं, नबी आते हैं, वो वसीला होते हैं, या किसी वली अल्लाह को आप जानते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो उसको अल्लाह के राह में वसीला बनाओ ताकि हम फलाह पा सकें। ना कि वसीले के ऊपर ही बैठ जाना और अल्लाह ताला को भूल जाना, इग्नोर कर देना, ठीक है ना। तो कोई भी अल्लाह का वली, कोई भी अल्लाह का नबी रसूल ये नहीं कहता है कि मेरी इबादत करो, लेकिन वो ये कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, ठीक है। तो ये इस सेंस में जो है ना वसीले को मानना चाहिए। वसीले को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, वो शिर्क भी है, वो कुफर भी है, वो गलत चीज भी है, वो आपका अकायद व नजरियात गलत है। लेकिन निजाम चूंकि वसीलों से चल रहा है, तो ऐसे बेहतरीन वसीले इख्तियार करो जिससे आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सको ना। तो ये बात लिखा हुआ है कि अल्लाह के राह में जद्दोजहद करो, जद्दोजहद करो, अल्लाह के राह में कोशिश करो, ठीक है ना। कोई ऐसा वसीला इख्तियार करो ताकि हम अल्लाह की तरफ कुर्ब पा सकें, और मतलब कुर्ब पाने का मतलब क्या था कि हम फलाह पा सकें। तो जो अल्लाह के वली होते हैं ये बहुत बड़ा वसीला होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के वलियों की कुर्बत इख्तियार करो, इनसे इल्म लो, इनसे इल्म सीखो। वो इल्म जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, वो रास्ता जिस पे चल के आपको अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, ये अल्लाह ताला की अपनी एक बात है, ये हमें लाजमी करनी चाहिए। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हक बात की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।